नमस्कार, मैं हूं मुक्ति यादव और आप देख रहे हैं शारदा टीवी। हिंदुस्तान अपना 74th रिपब्लिक डे मना रहा है और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे संविधान में हर भारतीय नागरिक को एक जैसा माना गया है। रिपब्लिक डे हर भारतीय के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और हमें ब्रिटिश राज से पूरी तरह मुक्ति मिली थी। तो आइए जानते हैं आम लोगों से कि उनकी क्या राय है रिपब्लिक डे पे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ मिलन सक्सेना। हेलो मिलन सक्सेना जी। तो आप अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। Yeah. So I am living in Noida, and I am working as a chief product manager in a company called vmentor.ai, and it is Mumbai-based company, and I am working from Noida. दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। सो आई वांट टू आस्क दिस, आपको पता है कि जैसे कि हम सबको पता है कि रिपब्लिक डे आ रहा है, तो डू यू थिंक एज एन इंडियन हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे अच्छे से स्टैंड ऑन कर रहे हैं या नहीं? Okay. So that's a really good question. I would say that duties and as well as responsibilities are the same part of the coin, right? So ultimately, I think we always talk about rights. That this is my right, that is my right, and I need to get all my rights, right? But I think sometimes I feel that as a citizen, we are not fulfilling on our duties. So sometimes everybody try to maximize their profit by some hook and crook. So maybe some people may be evading the taxes and all, right? And somebody may be cheating the others. So that's why I think somehow on the its balance has been missed. So something like it's a 50% rights and 50% duties. So I think right now people are talking all the times 70% on the rights and only 30% on the duties. So that is my take on that. इस वर्ड्स, थैंक यू सो मच। Thank you. नमस्कार, आपका नाम क्या है? My name is Akash Puran Besya. ओके, हाय आकाश। सो प्लीज़ टेल अबाउट योरसेल्फ। So I'm the area sales manager of Yugma. It's a edutech vertical of vMentor. It's a management consulting firm. So I've been into education industry like for the last 7 years, and I have done my graduation BTech from NIT Silchar. Yeah. Okay, so that's very impressive. My question is that as an Indian, we all know that everyone knows, I guess, that Republic Day is on 26th. So it's like 2 days from now. So do you think that as an Indian citizen, we are standing on our fundamental duties, and do we need any improvement? See, actually, perfection never can be achieved. We can always strive for perfection, right? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, तो रेस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, दोज थिंग्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें हमेशा करनी चाहिए। एंड सबसे ऊपर तो ऑब्वियसली हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वी हैव गॉट राइट्स। उसकी एक्सरसाइज हम अगर नहीं करेंगे तो देखिए, तो इंडिया में भी हमारे सिटीजन्स को आना जाना काफ़ी मुश्किलें होगी, राइट? सो ऑलवेज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप अच्छे से करेंगे, डेफिनेटली यू विल एबल टू एक्सरसाइज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड यू कैन क्लेम योर राइट्स, राइट? तो ड्यूटीज़ पहले आती हैं, देन योर राइट्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, आपका नाम क्या है? Sakshi Verma. हाय साक्षी। साक्षी, प्लीज़ टेल अबाउट योरसेल्फ। I belong to Kanpur and I am currently pursuing architecture from Sharda University. Okay, so my question is that as we all know that Republic Day is coming, and do you think as an Indian we all are standing on our fundamental rights completely? In my opinion, I think we are not completely standing on our fundamental duties, because we can say after even the constitution is established, people are facing discrimination on the basis of caste, and there is not even proper equality between the people. We can see low caste and high caste people discriminating between each other, and also like people are not aware of the surroundings and they are not provided with complete education. So I don't think we are completely standing. ओके, थैंक यू। Thank you. नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम आरजू है और मैं BGMC स्टूडेंट हूँ एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। सो आरजू, आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन इज़ दैट जैसे कि हमें पता है रिपब्लिक डे आ रहा है, एंड क्या आपको लगता है एज अ इंडियन वी आर स्टैंडिंग कम्प्लीटली ऑन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, या हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से निभा रहे हैं या नहीं? आई वुड नॉट से कम्प्लीटली, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को फोकस करनी चाहिए, जैसे कि कास्टिज़म हो गया और बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटिव चीज़ें होती रहती हैं इंडिया में हर थोड़े दिनों में, जिसके ऊपर उनको वर्क करना चाहिए, जिससे वो और फंडामेंटल बन सकता है फॉर नाउ। ओके, थैंक यू आरजू। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका सिंह है।
प्रियंका, अपने बारे में बताइए कुछ। मैं BGMC 4th सेमेस्टर से हूँ। Okay, so Priyanka, I want to ask the question is that Republic Day आ रहा है and we live in a democratic country. So क्या आपको लगता है कि मतलब क्या रेलेवेंस है रिपब्लिक डे का हमारी लाइफ में, या एज अ सिटीज़न वी आर लाइक फंडामेंटल, वी आर डूइंग अ जॉब, हम सारी अपनी फंडामेंटल ड्यूटी सही से निभा रहे हैं या नहीं? तो जैसे कि रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 26 को, ये हमारे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था, और एक सिंबलाइजेशन है कि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाया गया है ब्रिटिश राज से, वो मतलब इंडिपेंडेंस हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रही बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, एज ए सिटीज़न हमें चाहिए कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करें, बट कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भी लैक कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे असम से बिलोंग करती हूँ, अभी रिसेंटली जो गवर्नर है उसने अनाउंस किया है स्टेट में जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया है, उसके एरिया को और इंक्रीज़ किया है, और कुछ लोग जो है उस एरिया के वो आशंका जता रहे थे कि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, दे डोंट वांट टू गेट इंक्लूड इन दैट डिस्ट्रिक्ट। सो एक जो हमारे संविधान ने जिसको ये पावर दिया है फॉर डेवलपमेंट के लिए, कुछ सोच समझ के वो डिसीजन ले रहा है, बट लोगों को अपनी मतलब धर्म के नाम पे, अपनी ट्राइब के नाम पे उस चीज़ को इन ब्रॉड डाइवर्सिटी वो इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो समवेयर मुझे लगता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर हम लैक करते हैं, और आप कई जगह पे देख सकते हैं कि अवेयरनेस कम है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर, तो नेशनल फ्लैग्स की भी मिसयूज़ हो जाती है कई कभार, ये नहीं कि नोइंगली अननोइंगली भी। तो इस चीज़ का सभी को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू प्रियंका। हमारे देश में हर मज़हब और हर संस्कृति और हर भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ये संविधान ही तो है जो हम सबको जोड़ के रखता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मुक्ति यादव विदा लेती हूँ आपसे। देखते रहिए शारदा टीवी, और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।